Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your database teacher Alia Batul with lecture number 11. Students, today's review is what is UML and different types of UML diagrams. Students, a UML diagram is a diagram based on the UML Unified Modeling Language with the purpose of visually representing a system along with its main actors, roles, actions, artifacts or classes in order to better understand, alter, maintain or document information about the system. Students, let's see what is UML. UML standard language for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifact of software system, business modeling and other non-software system. The UML represents a collection of best engineering practices that have proven successful in the modeling of large and complex systems. The UML is a very important part of developing object-oriented software and the software development process. Students, UML uses mostly graphical notations to express the design of software projects. Using the UML helps projects teams communicate, explore potential designs and validate the architecture design of the software. हम स्टूडेंट्स UML को एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि देयर आर टू लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेसेस, DDL, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस के साथ हमने जो है वो DDL को भी देखा था. तो स्टूडेंट्स, UML जो है एक्चुअली वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस का एक्रोनियम है. सिंपली UML इज अ मॉडर्न अप्रोच टू मॉडलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. एंड स्टूडेंट्स, इसको हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि बहुत सारे डायग्राम्स जो हैं वो इस UML रिप्रेजेंटेशन के अंडर आते हैं. As the old proverb says, a picture is worth 1,000 words. By using visual representation, we are able to better understand possible flaws or errors in software or business process. Students, this UML was created as a result of the chaos revolving around software development and documentation in 1990s. There were several different ways to represent and document software system. The need arose for a more unified way to visually represent those systems as a result. हम देखते हैं कि इसमें UML डायग्राम्स में बहुत सारी डायग्राम्स जो हैं वो आती हैं. हम एक पिक्चर जो है, एक रोड मैप जो है अपने यूजर्स को देंगे बिफोर कोडिंग. हम अपने प्रोजेक्ट को एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में यूज़र तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक पहुंचाएंगे. तो स्टूडेंट्स, UML में 3 बेसिक कैटेगरीज हैं डायग्राम्स की. 1 इज स्ट्रक्चरल, 2nd इज बिहेवियरल, 3rd इज इंटरेक्शन. स्ट्रक्चर में हम ये तमाम डायग्राम्स आज बिल्कुल एक शॉर्ट व्यू में देखेंगे और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेन फोकस अपना क्लास डायग्राम पे करेंगे जो कि डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल जो हमारी डायग्राम्स हैं UML की, उसमें क्लास डायग्राम आ जाएगी, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर और पैकेज डायग्राम जो है वो हम स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में देखेंगे. स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे बिहेवियरल डायग्राम्स में, जो कि जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम होगी, स्टेट मशीन देखेंगे, यूज केस और इंटरेक्शन डायग्राम को बिहेवियरल डायग्राम में देखेंगे. 3rd फॉर्म हमारे पास है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन डायग्राम. इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स हम कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन डायग्राम को देखेंगे और इसके साथ सीक्वेंस डायग्राम होगी जिसमें डिफरेंट लाइफ टाइम्स होंगे और इंटरेक्शन ओवरव्यू एंड टाइमिंग डायग्राम जो है इसको हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट डायग्राम ऑफ UML लाइक इन स्ट्रक्चरल डायग्राम. क्लास डायग्राम को हम सबसे पहले देख लेते हैं. Actually, students, class diagram shows the classes of the system.
their interrelationships and the operations and attributes of the classes. Students, जो class diagram in the unified modeling language is a type of static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, operations और methods and the relationships among objects. हम अभी डायग्राम में देखेंगे कि एक्चुअली ये इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, मेथड्स क्या होते हैं. So explore domain concepts in the form of a domain model, analyze requirements in the form of a conceptual analysis model, and show the detailed design of object-oriented or object-based software. This is the example of class diagram. You can say student, हम अभी तक जो student name की entity जिसको show करते आए, this is now a class. Class name is student, class name is enrollment, and class name is course. But student rectangle is divided into 3 portions. One, student name means student is the class name. Second portion जिसमें आपको name and student नजर आ रहा है, these are the attributes of the students. Next पे आपको इसके जो constraints जहाँ राइट हुए हैं, these are the operations or methods of this class. इसके साथ enrollment आपको क्लास नजर आ रही है. enrollment क्लास में enrollment date is the attribute of this class. enrollment, drop, cancel, इसको फर्दर हम काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो इस तरह से आपस में इनका रिलेशनशिप जो है वो कोऑर्डिनलिटीज के थ्रू जो है वो शो हो रहा है. दिस इज अ क्लास डायग्राम. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लास डायग्राम जो है वो कोऑर्डिनलिटीज के थ्रू 0 और 1 यानी 1 to many एंड many to 1, 1 to 1 का जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, इसके थ्रू जो है इन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्लासेस का जो रिलेशनशिप है वो शो किया गया है. स्टूडेंट, क्लास डायग्राम के बाद हम नेक्स्ट डायग्राम जो है वो देखेंगे कंपोनेंट डायग्राम. एज द नेम सजेस्ट कंपोनेंट. कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स पार्ट्स को कहते हैं कि और कंपोनेंट्स जो है वो हमारे बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स आप कह सकते हैं, या हम जो प्रोजेक्ट जो है जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसके पार्ट आप कह सकते हैं. सो यूएमएल कंपोनेंट डायग्राम शोज द डिपेंडेंसीज अमंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द क्लासिफायर्स दैट स्पेसिफाई देम, फॉर एग्जांपल implementation classes and the artifact that implement them such as source code files, binary code files, executable files, scripts and tables. Students, this component diagram describe the organization and wiring of the physical component in the system. अभी आप कंपोनेंट्स देखेंगे डिफरेंट डायग्राम्स इसी डायग्राम के. सो कंपोनेंट डायग्राम आर ऑफन ड्रॉन टू हेल्प मॉडल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड डबल चेक दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायर्ड फंक्शन इज कवर्ड बाय प्लान्ड डेवलपमेंट. लेट्स सी कंपोनेंट डायग्राम. स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट जैसे आपने क्लास डायग्राम के अंदर एंटिटीज यानी क्लासेस को देखा एक रेक्टेंगल्स के अंदर जिसके 3 पोर्शंस थे, बट अब कंपोनेंट डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. और इन कंपोनेंट्स को किस तरीके से इंटररिलेट किया गया है, इनके रिलेशंस आपको नजर आ रहे हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कंबाइंड to each other with a specific relation. So students, हम कंपोनेंट डायग्राम के बाद एक और डायग्राम को देखते हैं. दिस इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम. एज द नेम सजेस्ट डिप्लॉय इज रिलेटेड टू रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट, deployment diagram shows a static view of the runtime configuration of hardware nodes and the software components that run on those nodes. Students, deployment diagrams show the hardware for your system, the software that is installed on that hardware, and the middleware used to connect the disparate machines to one another. डिप्लॉयमेंट डायग्राम की एग्जांपल स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. कंपोनेंट डायग्राम में जो आपने छोटे छोटे पोर्शंस देखे थे, डिप्लॉयमेंट डायग्राम में अब वही कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली रन टाइम बेसिस पे आ चुके हैं.
रनिंग पे आ चुके हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं, और आप इसको इसी डायग्राम को इस एक और फिगर के थ्रू जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। लाइक ये देख सकते हैं आप कि जो आपके जो बैकएंड पे फायरवॉल की बैकएंड पे जो वर्किंग हो रही है, एक्चुअली आप जो भी कोई पीडीए क्लाइंट है या मोबाइल पीसी हैं, कोई भी आपके पास आप यूजर किसी टाइप के भी हो, फायरवॉल की बैक पे जो डिप्लॉयमेंट हो रही होती है वो फायरवॉल आपको एज अ सिक्योरिटी पर्पस रोके हुई होती है। तो डेस्कटॉप है, एप्लीकेशन सर्वर है, आपके पास पेमेंट प्रोसेसिंग गेटवे है, मेन फ्रेम्स है, डाटा वेयर हाउस है, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। The next diagram of UML is object diagram. Students, object mean instance diagram. Instance are useful for exploring real world examples of objects and the relationship between them. अभी तक हम सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट्स की बात करते आ रहे थे, अब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इट शोज इंस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ क्लासेस। हमने ऑब्जेक्ट्स में कंपोनेंट्स या क्लासेस की बात नहीं करनी, एक्चुअली वी आर स्टडिंग नाउ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट mean object in object diagram. They are useful for explaining small pieces with complicated relationships, especially recursive relationships. Student, recursive relationship आप देख सकते हैं है तो एक hierarchy टाइप, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। लाइक आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर मैथ स्टैट इज द इंस्टेंस नेम एंड डिपार्टमेंट इज द क्लास नेम। किस तरह से डिराइव हो रही हैं, डिपार्टमेंट में मैथ डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट में फर्दर मैथ की कैटेगराइजेशन आपको पता है कि अप्लाइड मैथ एंड प्योर मैथ होता है, तो मीन्स आप कह सकते हैं अप्लाइड मैथ एंड मैथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैथ है, तो ये मैथ डिपार्टमेंट में आते हैं। और उसके अलावा जो मैथ स्टैट है उसमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी आ जाता है। हम इनको कंबाइन करते हैं, मीन्स देखें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ में कितनी ज्यादा जो है ब्रांचेस आ रही हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इन दोनों इन तमाम जो मैथ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शो करने के लिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डायग्राम का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम इज पैकेज डायग्राम। पैकेज सिंपली कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम्स। क्लास डायग्राम्स अभी आपने देखी हैं। क्लास डायग्राम्स में मैं एक दफा फिर रिव्यू कर देती हूँ कि आपने 3 पोर्शंस देखे थे। फर्स्ट वन वाज द क्लास नेम एंड सेकंड इज एट्रीब्यूट, थर्ड वन इज ऑपरेशन। तो उन तीनों वो जो क्लासेस थी उनमें अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो है उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास पैकेज डायग्राम्स हैं। इट कैन ग्रुप क्लासेस इनटू पैकेजेस। इन वही जो पहले क्लासेस आपने यूज की उनको हम ग्रुप करते हैं, तो these groups are called packages. A package is a collection of logically related UML elements. Packages are shown as file folders and can be used on any of the UML diagram. You can say file folders like here UI, ordering, shipping, stock databases, customer databases, accounting and bank are the classes. Now we can say they are the packages. पैकेजेस को हमने किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग्स में लेकर आए हैं, इनके रिलेशंस को किस तरह से, डिपेंडेंसीज को शो करें, दीज आर द पैकेज, दिस इज कॉल्ड पैकेज डायग्राम। Another diagram of UML is composite structure diagram. Composite structure used to explore runtime instance of interconnected instances collaborating over communication links. It shows the internal structure including parts and connectors of a structured classifier or collaboration. See here, composite structure mean student, seminar, course, enrollment, all are the instances of project. इनको हम किस तरीके से कंपोज ऑफ करेंगे, आपस में इकट्ठा कर रहे हैं, आपस में इनका रिलेशन जो है वो शो करें, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर। एक्टिविटी, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज शोन इन इज लाइक इन एक्टिविटी डायग्राम. Activity helps to describe the flow of the target system, such as the exploring complex business rules and operations, describing the use case, also the business process. It is object oriented equivalent of flow charts.
एंड डाटा फ्लो डायग्राम। स्टूडेंट्स दिस एक्टिविटी डायग्राम, हम इसको एक सिंपल से डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लाइक दिस इज दिस डायग्राम इज शोन लाइक अ फ्लो ऑफ प्रैक्टिकली एक्टिविटीज लाइक रिक्वेस्टेड ऑर्डर। आप एक जो ऑर्डर है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से फ्लो के अंदर आएगा, मीन्स के रिसीव ऑर्डर, रिसीव से फिर आप जो है वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपका जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपने रिक्वेस्ट स्टार्ट की है और फिर वो किन किन प्रोसेसेस से, किन किन फ्लोज से होके जा रही है, उसमें कितनी एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही है। दिस इज द एक्टिविटी, दिस इज शोन इन द एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में आप एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देख सकते हैं कि जो मॉडल एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट है दिस इज कनेक्टेड विद एवरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी लाइक मॉडल एंटरप्राइज बिजनेस आर्किटेक्चर, सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम्स, मॉडल एंटरप्राइज टेक्निकल आर्किटेक्चर। ये इन दोनों को देखें तो ये मॉडल एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है। और फिर लेफ्ट पैनल पे आप प्रायोरिटाइज एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट और डिस्क्राइब एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये भी हमारी मॉडल एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है। बट आप देख सकते हैं कि इन दोनों मॉडल्स जो हैं, राइट साइड के दोनों मॉडल्स का एक सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम के साथ भी इंटरकनेक्शन है, बट ये लॉजिकली एंड फिजिकली जो है आपस में मॉडल एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी डायग्राम जो है वो तमाम पूरी जो है एक्टिविटी जो है वो शो कर रही होती है। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट मशीन डायग्राम किस तरह से काम करती है, बिल्कुल एक मूरे मैले मशीन की तरह काम कर रही है। स्टार्ट हो रही है जी एनरोलमेंट से, टर्म स्टार्टेड हो रही है बीइंग टॉट और क्लासेस एंड, तो फिर हम फाइनल, अगर हम पर बीइंग टॉट पे हैं तो आप स्टूडेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं एंड स्टूडेंट को टॉट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं कि सेमिनार साइज इक्वल टू 0 है तो स्टॉप पे आप चले जाते हैं फाइनल एग्जाम पे, और अगर सेमिनार यानी सेमेस्टर आप इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, मतलब आप सेमेस्टर 1 पे हैं, 2 पे हैं, तो फिर बीइंग टॉट पे जा रहे हैं। अगर बिल्कुल 0 पे हैं तो फिर आप कैंसिल पे भी आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम पे भी। तो दिस इज द स्टेट मशीन डायग्राम। Another important diagram in the business field is use case diagrams. Describes the behavior of the target system from an external point of view. Use case describes the meat of the actual requirement. Use cases, actors and associations. You can see in this diagram, use cases describes a sequence of actions that provide something of measurable value to an actor and is drawn as a horizontal ellipsis. एक्टर कौन है? ये वो पर्सन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल सिस्टम को शो कर रहा है, को एक एज एन एक्टर जो है वो एक्टिंग वैल्यू जो है वो अपने आप को शो कर रहा है। एसोसिएशन जो है बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केस आर इंडिकेटर्स बाय सॉलिड लाइंस। आप इन लाइन फ्लो लाइंस को देखेंगे, दीज आर द एसोसिएशंस बिटवीन दीज एक्टर्स। An association exists whenever an actor is involved with an interaction described by a use case like this. This is an actor, patient is an actor, and communication is the association. Make appointment mean use case. This is a use case. तो इस तरह से यूज केस डायग्राम को आप फुल्ली तौर पे इस तरह से देख सकते हैं कि सेंटर में आपको यूज केसेस नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट एक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि इन यूज केसेस पे काम कर रहे हैं, एंड दीज आर द लाइंस आर शोइंग एसोसिएशन बिटवीन द एक्टर्स एंड यूज केसेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन डायग्राम है। कम्युनिकेशन डायग्राम यूज टू मॉडल द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द यूज केस. When compared to sequence diagram, the communication diagram is more focused on showing the collaboration of objects rather than the time sequence. This is a communication diagram. कम्युनिकेशन डायग्राम सिंपल एक फ्लो को शो कर रही है। स्टार्ट आप एक कस्टमर से करते हैं, कस्टमर जो है वो आपका जो है फिल बटन पे है या ऑर्डर डिटेल पे है, ठीक है। तो उसमें कहाँ से और जो आपका प्रोसेस जो है वो ऑर्डर कंट्रोल पे आता है, कहाँ से ऑर्डर हो रहा है, बिल्कुल एक सिंपल जो कम्युनिकेशन है वो शो हो रही है फ्लो लाइंस के थ्रू। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम जो है इसमें सीक्वेंस लाइंस होंगी, इसकी लाइफ लाइंस होती हैं जो कि एक सीक्वेंस को शो कर रही होती हैं, जो कि इसमें ये भी एक मॉडल कह रहा होता है कोलैबोरेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन अ टाइम सीक्वेंस. It shows how the objects interact with others in a particular scenario of a use case.
पर्टिकुलर सिनेरियो आप देख सकते हैं कि दीज आर द टाइमलाइंस ऑफ दिस सीक्वेंस डायग्राम्स। अ स्टूडेंट और सेमिनार एंड कोर्स, इनकी अपनी अपनी लाइन्स हैं, लाइफ लाइन्स हैं, जिसके अंदर एनरोल स्टूडेंट्स हैं। एनरोल स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट फंक्शंस है, गेट सेमिनार हिस्ट्री इज आल्सो एन फंक्शन एंड एनरोलमेंट स्टेटस इज आल्सो एन फंक्शन। और इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो सेमिनार के अंदर की लाइफ लाइन तक पहुंचता है और उसके बाद फिर कोर्स की लाइफ लाइन तक आते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम स्टूडेंट्स शोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइमिंग डायग्राम इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम, जो भी हम देख रहे हैं जिसमें हमने लाइफ लाइन्स को देखा। द डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम आर द axes are reversed so that the time are increased from left to right and the lifelines are shown in separate compartments arranged vertically. This is a timing diagram. Timing diagram you can say printers and PCs के दरमियान जो हमारे पास जो एक टाइमिंग डायग्राम है जो शो करती है कि कहाँ पे प्रिंटर आइडल है, कहाँ रिसीव डाटा कर रहा है और कहाँ प्रिंटिंग हो रही है। तो इसी तरह पीसी भी कहाँ पे आइडल है, कहाँ प्रोसेसिंग है और कहाँ पे रिपोर्टिंग है। ये एक टाइमिंग के थ्रू जो है वो नीचे आप इसका स्केल देख सकते हैं, वो टाइमिंग के मुताबिक जो है वो शो कर रहा है। इस तरह से इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम भी फोकस करता है ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द इंटरेक्शन पे। इस तरह से इट इज अ वेरिएंट ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम वेयर द nodes are the interactions or interactions occurrence. It describes the interactions where messages and lifelines are hidden. Student, this is the example of interaction overview diagram. Interaction overview diagram जो है ये हमारी लास्ट डायग्राम थी। हमने स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है इसमें हमने बहुत सी डायग्राम्स देखी, जिसमें हमने मेन एक्चुअली यूएमएल की जो डायग्राम्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा। लाइक यूएमएल की जो 3 बेसिक टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और इंटरेक्शन डायग्राम्स। इसमें हमने क्लास, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, ऑब्जेक्ट, कंपोजिट, स्ट्रक्चर और पैकेजेस को देखा। और इसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट व्यू में एक्टिविटी, स्टेट मशीन, यूज केस, इंटरेक्शन डायग्राम को देखा। और इंटरेक्शन डायग्राम में कम्युनिकेशन यानी कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम को लास्ट पे देखा है। होपफुली कि आपको ये तमाम डायग्राम्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो चुकी हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे क्लास डायग्राम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।